What makes elections in India democratic? We get to read a lot about the unfair practices in elections. हमने पढ़ा कि किस तरह से काफी unfair practices करी जाती है elections के दौरान. Newspapers and television reports often refer to such allegations. कई बार जो newspapers या television reports आती हैं, वो भी इन्हीं allegations के बारे में बताती हैं. Most of these reports are about the following. अब ज्यादातर कैसी reports होती हैं? Inclusion of the false names and exclusion of the genuine names in the voters list. कि ज्यादातर जो genuine names है वोटर लिस्ट में वो हटा के उनकी जगह fake names डाले हुए होते हैं. Misuse of the government facilities and officials by the ruling party. जो भी ruling party है वो ज्यादातर जो government की facilities हैं या officials हैं वो उनका misuse करते हैं. Excess use of the money by rich candidates and big parties. बहुत ज्यादा पैसे का इस्तेमाल किया जाता है जो कि rich candidate है या बड़ी बड़ी parties हैं उनके द्वारा. Intimidation of the voters and rigging on the polling day. वोटर्स को जो है पोलिंग डे के दिन धमकी भी मिलती है या उनको जो है सामान भेजा जाता है कि वो जो है उनके ही फेवर में वोट डाल सकें. Many of these reports are correct. इसमें काफी हद तक रिपोर्ट्स सही भी होती हैं. We feel unhappy when we read and see such reports. हमें बहुत दुख होता है जब हम इस तरह की रिपोर्ट्स को देखते हैं या पढ़ते हैं. But fortunately they are not on such a scale so as to defeat the very purpose of elections. पर ये इतनी बड़ी मात्रा में नहीं होती कि जो मेन पर्पस है इलेक्शंस का उस वो तक हार जाए इससे. This becomes clear if we ask the basic question. अब यहाँ पे एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर हम बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, can a party win an election and come to a power not because it has popular support but through the electoral malpractices? क्या कोई पार्टी जो है इलेक्शन जीत के पावर में आ सकती है इसलिए नहीं कि उसके पास पॉपुलर सपोर्ट है बल्कि उसने जो है इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस करी है यानी गलत तरीके से उसने इलेक्शन जीते हैं. This is a vital question. एक बहुत important question है. Let us carefully examine various aspects of this question. अब हम various aspects देखते हैं कि क्या इस question के लेके हैं. Independent Election Commission. One simple way of checking whether the elections are fair or not is to look who conducts these elections. सबसे जो आसान तरीका है ये चेक करने का कि इलेक्शंस जो हैं वो फेयरली हुए हैं या नहीं, ये देखने का काम करता है जो इलेक्शंस करवाता है. Are they independent of the government? क्या ये गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग है? और कैन द गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस और प्रेशराइज देम? या जो गवर्नमेंट है जो भी रूलिंग पार्टी है वो इनको जो है इन्फ्लुएंस कर रही है या इन पे दबाव डाल रही है. डू दे हैव इनफ पावर्स टू बी एबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस? क्या इनके पास इतनी पावर होती है कि ये एक आसानी से फ्री और फेयर इलेक्शंस करवा सकें? डू दे एक्चुअली यूज दीज पावर्स? और क्या ये इस तरह की पावर्स को यूज करते हैं? The answer to all these questions is quite positive for our country. इन सभी आंसर्स जो हैं इन क्वेश्चंस के लिए काफी पॉजिटिव हैं. In our country, elections are conducted by an independent and very powerful election commission. हमारी कंट्री में जो इलेक्शंस कराए जाते हैं वो ज्यादातर एक बहुत ही इंडिपेंडेंट और पावरफुल इलेक्शन कमीशन द्वारा कराए जाते हैं. It enjoys the same kind of independence that the judiciary enjoys. इनकी भी बिल्कुल वैसे ही इंडिपेंडेंस होती है जैसी कि जुडिशरी की है. The Chief Election Commissioner is appointed by the President of India. जो Chief Election Commissioner है उनको President appoint करते हैं. But once appointed, the Chief Election Commissioner is not answerable to the President or the government. एक बार अपॉइंट हो गए तो उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कोई जवाबदेही नहीं है, चाहे प्रेसिडेंट को हो या गवर्नमेंट को. Even if the ruling party or the government does not like what the commission does, it is virtually impossible for it to remove the chief election commission. अगर रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट को जो है अच्छा नहीं लगता कि जो कमीशन कर रहा है तब ये बहुत मुश्किल है कि वो जो है चीफ इलेक्शन कमीशन को हटा सके. Very few election commissions in the world have such wide-ranging powers as the Election Commission of India. बहुत कम इलेक्शन कमीशन ऐसे हैं पूरी दुनिया में जिनके पास ऐसी पावर्स हैं जैसे कि इलेक्शन कमीशन इंडिया के पास है. Election Commission take decisions on every aspect of conduct and control of elections from the announcement of the elections to the declaration of results. इलेक्शन कमीशन जो है वो सारे डिसीजंस लेता है चाहे इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के हों या उनको कंट्रोल करने के हों जिस दिन से अनाउंस हो जाते हैं कि इलेक्शंस होंगे और जब तक कि रिजल्ट्स नहीं डिक्लेयर होते. It implements a code of conduct and punishes any candidate for the party that violates it. वो जो है कोड ऑफ कंडक्ट लगाते हैं और कोई भी पार्टी हो या कोई भी कैंडिडेट हो उसको अगर उसने उल्लंघन किया तो उसको उसकी सजा मिलेगी. During the election period, the election commission can order the government to follow some guidelines. इलेक्शन पीरियड के दौरान जो इलेक्शन कमीशन है वो गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकता है कि आप कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करें. To prevent use and misuse of the governmental power to enhance its chances to win elections. आप जो है कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे या मिसयूज नहीं करेंगे गवर्नमेंटल पावर का कि आप अपने इलेक्शन जीतने के चांसेस बढ़ा सकें. और टू ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को ट्रांसफर नहीं करेंगे. When on election duty, government officers work under the control of election commission and not the government. जब भी इलेक्शन की वक्त ड्यूटी लगती है तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में काम करते हैं, उनके कंट्रोल में होते हैं ना कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में.
In the last 15 years or so, the Election Commission has begun to exercise all its powers and even expand them. पिछले 15 सालों में जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करता है और यहाँ तक कि अब उन पावर्स को बढ़ा भी रहा है. It is very common now for the Election Commission to reprimand the government and administration for their lapse. अब ये बहुत कॉमन है कि इलेक्शन कमीशन जो है कभी कदा गवर्नमेंट को या एडमिनिस्ट्रेशन को भी फटकार लगा देती है अगर उससे कोई भूल हो जाती है. When the election officials came to the opinion that the polling was not fair in some booths or even in an entire constituency, they order a repoll. अगर इलेक्शन ऑफिशियल को ऐसा लगता है कि जो पोलिंग है वो कहीं बूथ पे या किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अच्छी नहीं हुई है, सही नहीं हुई है, तो वो दोबारा रीपोलिंग करवा देते हैं वहां. The ruling parties often do not like it what the election commission does. और ruling parties को कई बार पसंद नहीं आता है जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, but they have to obey, पर उन्हें मानना पड़ेगा. This would not have happened if the election commission was not independent and powerful. और ये नहीं हो सकता था अगर इलेक्शन कमीशन जो है इंडिपेंडेंट नहीं होता या पावरफुल नहीं होता.